Hello students, welcome back to another important topic, colloids. So students, you can see on the board we have written very important colloids. What are colloids? What is the story of the discovery of the colloids? Who started the discovery of the colloids? Little bit of history is also there. And let me go back to the 1861. What I'm एक्सक्यूज saying, मी सर, हाँ, एक मिनट। वो मैं कह रहा था कि आप वो प्रोजेक्ट की वो मैं रिकमेंडेशन बाद और में बात करूंगा, अभी लेक्चर भेजे के थे। बाद बात करना, अभी नहीं। तो व्हाट वी आर टॉकिंग इज colloids. When we start with the colloids, is very important topic and questions will be there on this. Now the how the colloids were discovered and what is the story of the colloids, that's our first part. Little bit if I go back to the historical background of the colloids actually 1861, thomas graham, the scientist Thomas Graham he was studying the rates of diffusions. What he was studying? Rates of diffusion. Rates of diffusion. Thomas Graham was studying the rates of the diffusion of solutions of different substances, of solutions of different substances. Very important point. Of different substances. Students, note down everything, it is important. Thomas Graham, 1861, studying the rates of diffusions of solutions of different substances through semi-permeable membrane, through SPM. You know what is SPM? You can use, this is semi-permeable membrane. What we call this as semi-permeable membrane. Stay alert, try to understand everything. Try to understand everything. Every word I speak has a meaning. We are trying to decode the entire chemistry book. So we have to be able to understand everything. If there is any doubt, you can ask me, no issue. Is a live interaction. What I am talking that 1861, rates of diffusion of solution of different substances through semi-permeable membrane was studied by Thomas Graham. Thomas Graham. What is a semi-permeable membrane? You know the animal membrane. You are aware of animal membrane, students. You are also aware of parchment paper. They act as semi-permeable membrane. They act as semi-permeable membrane. So parchment paper, cellophane paper, or animal bladder, you know, animal bladder is used for dialysis. You know what is dialysis. The dialysis of kidney is so well known to you people. He was studying different type of, he found there were two types of substances. What he discovered after the experiments, he found there are two types of substances. One he called crystalloids. Students, like NaCl. NaCl is a sodium chloride, urea, sugar. You know that they exist in crystal form. He found that if I use a semi-permeable membrane, these were able to pass through, they were diffused. These particles of crystalloids diffused. They show diffusion. Fast through semi-permeable membrane. These were able to, the size of the particles is such that they were able to pass through semi-permeable membrane or parchment paper or animal bladder. They were able to pass through. These substances were called crystalloids. At the same time, he found there are other type of substances, which could not pass through them. For example, starch.
gum, gelatin, they could not pass through semi-permeable membrane. They do not diffuse fast or they diffuse very slowly. Say he found that they do not diffuse or they diffuse very slowly. He found no diffusion or slow diffusion or slow, very, very slow diffusion. And he called these substances as colloids. But he said these are colloids. This is a story in 1861 students. The first time they came to know that there are two different types of solutions of substances. One type of solution of substances which were solutions of crystalloids like NaCl, sugar, urea, they found that they were diffusing through semi-permeable membrane. You know what is diffusion? They were able to pass through the semi-permeable membrane. But starch, gum, gelatin, these particles could not pass through semi-permeable membrane, and he called them as colloids. So the definition of colloids was born. But today we know that this definition is no longer correct. This definition no longer holds true. Later on, they found that even substances like NaCl or other urea, etc., they can also diffuse under certain conditions. Under certain conditions. So this was not the correct definition. Later on, what we discovered that this is not the correct definition because certain condition crystalloids can behave as colloids. Certain conditions. If conditions are changed, what they found, the crystalloids could behave as colloids. Crystalloids could behave, crystalloids like NaCl could behave like colloids. Under certain conditions, they found the story that NaCl in water forms a true solution. So here we are talking of something like a true solution. And a colloid means something they are observing rates of diffusion are different. So on that basis, he is trying to classify them as true solution or colloids. So are they found NaCl in water? NaCl in water is a true solution, but if I take NaCl in benzene, it behaves like a colloid, students. It behaves like a colloid. So this definition was not correct, which was given by 1861 by Thomas Graham. And what is the definition which we are giving today to a colloid, students? You know that this is a very important topic. This is a very important chapter. All the substances which you are eating, milk, butter, creams, you are applying antiseptic creams and various type of lotions you are using, paints you are using, inks you are using in your everyday life. You will turn out to be the colloids in our everyday life, and they have huge applications and uses. We will see that. So that is why the topic is very important, students, and I have tried to give you the modern, now we are coming to the modern definitions of the colloids and what are the examples of these colloids. But here in 1861, experiments were done by Thomas Graham on the rates of diffusion of different solutions of different substances, and he could discover that there were two different type of solutions. And today you already studied in 10th and 9th classes that you have true solution, you have colloids, and you have suspension. You are aware of this in the chapters you studied about true solutions. And in 9th, 10th, they talked about colloids, and you knew about suspensions. So that you said there are three types of the solutions which exist. In true solution, the size of the particle is so small that they can easily pass through the membranes, as we are talking about. Here the size of the particle is intermediate between true solution and suspension. They don't settle down, you know about. We will study all these properties. And suspension, you know, if you take chalk powder in water or mud in water or sand in water, they settle down. So you can see them. This is heterogeneous, this is homogeneous solution. Homogeneous solution, you already in the solution chapter we told you about the solutions.
that these are homogeneous, and colloids are also heterogeneous systems, because here you will have two phases. So what we are talking about the colloids today now, here is a definition of the colloid which will be written in the exam, student. What is a colloid? I am saying note down everything, use colored pens if possible wherever, because they will help us, and we have to write answers in the exam maximum 1-2 lines only, 1 or 2 lines. What is the definition of the colloid, student? Colloid is a heterogeneous system in which one substance is dispersed as very fine particles in another substance, called dispersion medium. See, important point, very important point, student. I will put it with different color. Colloid, see, heterogeneous system. One substance is a dispersed phase and another substance is dispersion medium. Student, this is very important definition of the colloids. What I'm saying, there is a dispersion medium, students, and there is a dispersed phase. Interesting that in a solution you said there is a solute and a solvent. You know about the solution definition. If it is a solution, you said there is a solute and a solvent. Solute is present and dispersed in the solvent. And in a colloid, we are saying there is a dispersion medium and dispersed phase. Medium, what is medium? Medium is that in which the particles are suspended or particles are distributed. So there are particles which are present in a medium, which we call as dispersion medium. And the particles which are dispersed, they are called dispersed phase. So every colloid will have two things. One, dispersion medium, and second, dispersion phase. And the size of the particle is very, very small. It is heterogeneous, we are saying heterogeneous. What is the size of the particle? You see that in a true solution, I told you the size of the particle is less than 1 nanometer. Here the size of the particle is 1 nanometer to 1000 nanometer. In suspension, the size of the particle is greater than 1000 nanometer. So here we know the size of the particles, students. Here the size of the particles which are dispersed. The dispersed phase particle size is 1 nanometer to 10 micrometers, which we are saying 1 nanometer, students, to 1000 nanometer. So the size of the particle is small and will not be visible to the naked eye. But it is bigger than the true solution. Less than the suspension size particles. So today we understand what a colloid is, student. According to us, the definition of the colloid, we can say that it's a heterogeneous system in which one substance is dispersed as fine particles in another substance, which we call as dispersion medium. So that will always have two things. But every colloid will have two things. What? Dispersion medium and dispersed phase. Just as I said, every solution has a solute and a solvent. Here I talked of solute and a solvent. Here I am talking of dispersion medium and dispersed phase. This is the difference. In this you said there is a solute, sir, and there is a solvent. Here I am saying there is a dispersion medium and dispersed phase. The size is 1 nanometer to 1000 nanometer. Okay, now what are the examples? Because in the exam they are asking, give the examples of the colloids, or they will give you some example and will ask you what type of colloid is this. And I've given here plenty of definitions and plenty of examples of the colloid, student. Examples: fog, smog and sprays. You know fog, what is fog? What is a fog? There is a water droplets suspended in air. Your air is a mixture of gases. What is air? Air, you have oxygen. In air you have nitrogen, you have other gases. So air is a gas, and inside the gas you have water molecules. So you can see, you experience fog in winter, smog, sprays, the sprays which you are making, various type of sprays you are doing.
They are all examples of the colloids. Smoke and dust in the air, students. You have seen smoke in the air. What do you have in smoke? Carbon particles, dust particles, those black particles, they are in gas, they are present in the gas in the air. So these are also colloids. Milk, the milk you are drinking, it's a colloid, it's a colloid, milk is a colloid, students. So the pigmented plastics, silver iodide salt, toothpaste, gold salt, aerosol liquids, so many types of examples we are giving you. The difference between a colloid and a suspension is that particles will not settle to the bottom over a period of time. They will stay suspended or float. As I said, milk. Milk is a mixture of liquid butter fat globules dispersed and suspended in water. So milk is also an example where you have fat. That is the fat present in the milk is also liquid, but it is globules dispersed and suspended in water. Milk you are drinking, they are colloids and emulsions. They are colloids and emulsions. Blood, blood has a characteristic of both a colloid and a suspension, making it a colloidal suspension. Your blood is also a colloidal in nature, colloidal suspension. In the normal stable state, blood is a suspension which is a colloid. It mainly consists of red and white blood cells and lymphocytes suspended in the plasma. So the story of blood, there is a plasma. So inside the plasma, what you have? Red and white blood cells. So solid dispersed in gas like smokes are also colloids. So dispersion of finely divided soot particles. Smoke, what is smoke? Is a dispersion of finely divided soot particles in the atmosphere. These are all examples of the colloid, students, which I'm talking about. Lot of examples I have with me so that you can understand. Gas dispersed in liquid. Certain gas can be dispersed in liquid. Whipped cream, foams. Shaving cream, you are shaving cream, you know that it forms foam. So what is how you are forming cream? Gas is dispersed in liquid, which is called whipped cream. They are all examples of colloids, students. Gas dispersed in a solid form. You know what is a solid form? There is a solid, inside that there is a gas. Marshmallows consist of tiny air bubbles dispersed in a solid consisting of sugar and gelatin. Sugar and gelatin, they are present in tiny air bubbles. Liquid dispersed in gas. What is a fog or aerosols? Fog. What is fog? There is a liquid drops in air. Air is a gas. Air is a gas. Then liquid dispersed in solid. Examples of solid emulsions. Solid emulsions, student, jelly. You seen the jelly type of material. Butter is an emulsion of water droplets in solid. Butter. What is butter? Water is an emulsion of water droplets in solid butter fat. Butter. Solid fat is there. Solid fat is there. Inside that you have water droplets. सर हाँ. अरे जो आपने सर्टेन कंडीशन क्रिस्टल लॉइड्स कोलॉइड्स लिखवा रखा है ना सर, ये वाला एक बार हाँ. ये वाला वापस बता दो सर. What I told you here that Thomas Graham has given two types of substances in 1861. Crystalloids were those substances like NaCl, urea, sugar, which could pass through semi-permeable membrane, which could diffuse very fast. They could diffuse very fast through semi-permeable membrane. And those substances, those compounds which were dissolved in water like starch, gelatin, gum, they could not pass through semi-permeable membrane, and he called them as colloids. And we are saying that is not correct definition of colloid presently. That is not the correct definition presently. Does that clear your doubt? It is only the story of the discovery of the colloids. सर नहीं सर, जो आपने सर्टेन कंडीशंस वाला लिखा है ना एक छोटा सा नीचे, Certain conditions,
मैंने ये बताया कि इन सर्टेन कंडीशंस दिस डेफिनेशन इज रॉन्ग बिकॉज इवन ट्रू सोल्यूशन कैन बिहेव लाइक ए कोलाइड. फॉर एग्जांपल, if I dissolve NaCl in water, it is a true solution. If I dissolve NaCl in benzene, it is not a true solution. Then it is no longer a true solution. It behaves like a colloid. It behaves like a colloid. So this is the reason. So that is why this definition proved wrong. So conditions will change. The true solution may become a colloid, or colloid may become a true solution. So that is what we are saying. Therefore, this definition was not accepted. Got it? So what I have changed here, solvent, water, dispersion medium water, here dispersion medium benzene. Then it is no longer a true solution when you put NaCl in benzene. No longer a true solution. You have noted all these examples. Note down if you have not noted. Very important examples. Such questions are given in the paper. I am telling you again and again, students, that these type of questions are asked in the exam, which we will discuss more. You have got everything here written, that what are the various examples of the colloids. Most of the substances, toothpaste, creams you are using, milk you are using, butter you are using, all these substances are colloids. So we will see what type of colloids are there. We will be discussing the second part of it, which is the classification of the colloids. This is my first part, what are colloids, and the discovery of the colloids by Thomas Graham. Should I proceed further? Yes, sir. Okay, we understood this. I gave plenty of examples. Your blood is also a colloid, and why the bleeding stops when you apply some iodine of tincture, etc., or something. We will see that. सर अगर किसी चीज के अंदर कोई दूसरी चीज के कहते हैं पार्टिकल्स अगर सस्पेंड मतलब अंदर रह जाए तो वो कोलाइड हो जाता है. नहीं, इनका साइज मैंने बताया, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर पे पार्टिकल्स जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पे ये लिखा है ना मैंने डेफिनेशन, ये दिस शुड बी दिस अ कंडीशन. Dispersion medium, dispersed phase, and the size of the particle should be between 1 nanometer to 1000 nanometer. If the particle size is less than this, वो true solution बन जाएगा. If the particle size is greater than 1000, that will be type of suspension. 3 टाइप के पढ़े थे 9th 10th में हमने, यहाँ पे लिखा क्या पढ़े थे, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन. साइज ऑफ द पार्टिकल इंपॉर्टेंट, ये साइज ऑफ द पार्टिकल मैंने लिखा इसलिए ये हमें बताना पड़ेगा, दैट साइज ऑफ द पार्टिकल 1000. सस्पेंशन में आ गया, कोलाइड्स का साइज ऑफ द पार्टिकल 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. ट्रू सॉल्यूशन का साइज पार्टिकल कोलाइड्स में सर वो सेटल नहीं होता ना सर, बॉटम नहीं होगा, नहीं होगा, वो अभी प्रॉपर्टीज में हम स्टडी करेंगे सारा. वो देखा था 9th 10th में, यू स्टडीड अबाउट दैट. सस्पेंशन सेटल डाउन हो जाती है, ये सेटल डाउन नहीं होते. इसकी प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे, वो हमारे कोर्स में है कि क्या क्या इफेक्ट ये शो करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ऐसे हाउ विल वी प्रिपेयर देम, वो भी स्टडी करेंगे. कोलाइड्स को कैसे बनाएंगे, ये हमारे कोर्स में है. पर अभी ये पता लग गया कोलाइड्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स क्या हैं. कितने सारे, बहुत सारे एग्जांपल दिए मैंने, 1-2 भी नहीं दिए. बुक में तो 1-2 लिखेगा, मैं तो खूब भर दिया तुम्हारे को आने वाले टाइम के लिए, सारे दे दिए, कितने सारे. अभी और पता लगेगा कि ज्यादातर चीजें कोलाइडल है इन नेचर, तो देखेंगे हम कैसे करते हैं. जो स्मोक होते हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, जे तुम अपना आटा गूंथते हो, तो जब आटा गूंथते हो वो भी कोलाइडल फॉर्म आ जाती है. बटर सब कोलाइडल फॉर्म में, जो भी कुछ खा रहे हो, दूध पी रहे हो, वो भी कोलाइडल नेचर का हो गया. ब्लड भी आपके बॉडी का कोलाइडल इन नेचर हो गया. क्लाउड्स भी जो है आपके, वो भी कोलाइड्स की फॉर्म में, इसीलिए ही वो चार्जिंग होती है उनके ऊपर और वो बिजली खड़कती है. तो आपने देखा कई लोग मरे थे अभी जब क्लाउड्स कहाँ बिजली गिरी थी. और आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है, वो भी कोलाइड होती है, इसलिए होती है. और उसको हम बताएंगे आपको सारी चीजें, बहुत ही इसके एप्लीकेशंस हैं, बहुत ही यूजेस हैं. और जितनी मेडिसिन वगैरह तुम खाते हो ना, वो सब कोलाइडल नेचर की होती है, क्योंकि वो इफेक्टिव हो जाती है, उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो अपने बॉडी के अंदर असिमिलेट हो जाती हैं. ये कफ सिरप सोल्यूशन जितने भी आप पीते हो, सब कोलाइडल इन नेचर होते हैं. ये सारी चीजें हम देखेंगे. तुम बाजार से बोतलें लाते हो ना, वो जितने भी सिरप वगैरह, उनको शेक करते हो ना, फिर आप पीते हो. शेक नहीं करते, वो नीचे बैठ जाते हैं पार्टिकल्स. डाइजीन सिरप है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये सारा तुमने कभी यूज किए तो तुम्हें पता होगा.
जितने भी लिक्विड लाते हो सब क्या होते हैं, कोलाइडल इन नेचर होते हैं। आंखों में जो डालते हो वो आर्गेसोल है, वो भी एक कोलाइडल सोल्यूशन है। तो ये सारे, क्योंकि कोलाइडल सोल्यूशन का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, सो दे बिकम वेरी इफेक्टिव और बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से डाइजेस्ट असिमिलेट हो जाते हैं। ओके सर। हमें समझ में आई कोलाइड क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। देखो ये देखो हमारे पास और इंटरेस्टिंग चीज आ गई। और तुम्हारी तो नॉलेज बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, तेरा दिमाग लगाना है, समझना है। देखो मैंने क्या कहा कि वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, once we understand then it is very easy for us to write the exam question etc. all I am discussing, ये क्वेश्चन आंसर ही यहाँ पे आ रहे हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। अब रट्टेबाजी नहीं करनी, रट्टेबाजी से मैं भूल जाऊंगा एग्जाम में। समझना है, समझना है। अब समझने की कोशिश कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं, एक बार अच्छी तरह समझना है, देन इट बिकम्स इजी। अब हम कह रहे हैं क्लासिफिकेशन करनी है कोलाइड्स की। तो तुमने तो मुझे कह दिया सर कोलाइड में दो चीजें होती हैं, क्या क्या होता है? तो एक डिस्पर्शन मीडियम होता है सर, हर बार मैंने यही कहा। क्या होता है? डिस्पर्शन मीडियम। एंड एक होता है डिस्पर्स्ड फेज सर। दो ही चीजें होती हैं जिससे कोलाइड बनता है, यस और नो, बताओ यस और नो, दो चीजों से बनता है। सोल्यूशन किससे बनता है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से। कोलाइड किससे बनता है? डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज से। तो डिस्पर्स मीडियम क्या होता है? जैसे जो वाटर है ज्यादातर वो डिस्पर्शन मीडियम है, या अल्कोहल है, या बेंजीन, ऐसा कोई भी लिक्विड है। इन दैट वी आर डिस्पर्सिंग सम पार्टिकल्स, द साइज ऑफ द पार्टिकल शुड बी व्हाट? 1 to 1000 नैनोमीटर। ये डेफिनेशन बताई। और ये एक हेट्रोजीनियस एक टाइप का सिस्टम है। क्या है? हेट्रोजीनियस। तो हमने कितने टाइप के कोलाइड्स बनेंगे हमारे पास? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो अगर मैं इनकी फिजिकल स्टेट को चेंज कर दूं, मैं ये कह रहा हूं इफ आई चेंज द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड होती है, लिक्विड और गैस, ये फिजिकल स्टेट्स होती हैं, हमें पता है इनका। इफ आई चेंज दिस, किसकी? या मीडियम और डिस्पर्स फेज दो ही तो चीजें हैं, तो मैं दोनों की चेंज कर सकता हूं। क्या? फिजिकल स्टेट। तो फिर क्या होगा? कोलाइड जो बनेंगे दे विल बी सेम, दे विल बी डिफरेंट। तो डिफरेंट टाइप के कोलाइड्स बनने वाले हैं। कैसे? आई विल चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। एनी डाउट? एनी डाउट हियर? मैं वो एग्जांपल देने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू गिव एग्जांपल। सही है कि हमारे पास एक मीडियम होगा, एक फेज होगा, जिसमें जो पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाएंगे इस मीडियम के अंदर। आपने स्टार्च डाल दी वाटर में, स्टिर कर दिया, तो ये क्या बन गया? कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। आपने गम का यूज करते हैं ना, आप गम बहुत देखी है, वो क्या है? कोलाइडल है। गम, जेली, जेलेटिन, ये सब आप क्या कर रहे हैं? सब क्या है? ये सब कोलाइड्स इन नेचर है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड करेगा, क्लासिफिकेशन हम किस पे कर रहे हैं? फिजिकल स्टेट के ऊपर। मैं कह रहा हूं फिजिकल स्टेट किसकी? इनकी दोनों की। और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकती है। इतना सारा वर्ल्ड है हमारा जहां हम रहते हैं, चीजें सॉलिड फॉर्म में भी है, लिक्विड में भी है, गैस भी है, एयर वेयर सब ये गैस है हमारे पास, वाटर है, और भी बहुत सारे लिक्विड्स हैं हमारे पास, बेंजीन, एसीटोन, ईथर, ये बहुत सारे लिक्विड होते हैं हमारे केमिस्ट्री लैब में भी, तुमने देखे हैं। और सॉलिड भी सारा दिन हम देखते हैं, चारों तरफ सॉलिड पड़े हुए हैं हमारे, बहुत सारी चीजें सॉलिड फॉर्म में है। तो फिजिकल स्टेट चेंज कर दूंगा तो ये डिफरेंट बन जाएंगे। तो हमने क्लासिफाई किया है इनको यहाँ पर। ये टेबल दिखाई गई है आपके एनसीईआरटी बुक में। देखो एनसीईआरटी बुक की टेबल यहाँ पे हमने रखी है आपके सामने, इसको समझेंगे। इस टेबल को समझना है कि यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। देखो ये दिस इज माय डिस्पर्स्ड फेज, और ये क्या है? डिस्पर्शन मीडियम। भाई एक सॉल्यूशन आप बना रहे हो कोलाइडल, ठीक है। अब तुमने कहा कि लो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं। यहां पर आपके पास एक मीडियम है। क्या है? मीडियम। तो वाटर मान लो, चलो वाटर सबसे सब मीडियम है, बहुत सब मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग। अब ये एक मीडियम है मेरा, ये लिक्विड है इस टाइम,
मीडियम मेरा सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया जो स्मोक है हो उसमें एयर के अंदर पार्टिकल्स हैं, एयर के अंदर पार्टिकल्स हैं कार्बन के और दूसरे डस्ट पार्टिकल्स काले काले जो हैं। अब ये मेरा मीडियम है, डिस्पर्शन मीडियम है, ये हमारा डिस्पर्शन मीडियम ऊपर लिखा है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तुमने कहा डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं। तो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल चलो ग्रीन कलर में अब इसके अंदर तुम कह रहे हो सर जी कुछ पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स्ड फेज, ये दिख रहे हैं ग्रीन कलर वाले, वो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मिक्स हो गए अच्छी तरह। व्हाट डू यू गेट, एक अगर इनका साइज ऑफ द पार्टिकल, अगर साइज ऑफ द पार्टिकल अगर 1 से 1000 नैनोमीटर हो जाएगा तो वो क्या बन जाएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। यही बताया डेफिनेशन मैंने, बोलो। तो यहां पर सॉल्यूशन कितने टाइप के बन सकते हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं। ये जरूरी थोड़ी है कि एवरी टाइम सॉल्वेंट विल बी लिक्विड, इट कैन बी गैस, इट कैन बी सॉलिड आल्सो। तो इस तरह से हम इनको फिजिकल स्टेट चेंज करते जाएंगे और डिफरेंट टाइप के कोलाइड्स बनेंगे। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में। अब देखो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं डिस्पर्स्ड फेज मेरा सॉलिड है, देखो यहां पर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और मीडियम भी सॉलिड है। आपके पास है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा क्या है डिस्पर्शन मीडियम। अब डिस्पर्शन मीडियम मैं कह रहा हूं सॉलिड है, तो सॉलिड में मैंने क्या डाल दिया, सॉलिड, सॉलिड के अंदर मैंने सॉलिड डाल दिया। ये फेज भी सॉलिड है और मीडियम भी सॉलिड है, तो ऐसे उनका क्या नाम होता है, फिर उन्हें क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल। ये मैंने यहां लिखा है, ये इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल। ये हमें याद करना है, वी हैव टू रिमेंबर इट, दिस इज सॉलिड सॉल बन गया। क्या बन गया, सॉलिड सॉल। इसका एग्जाम्पल कलर्ड ग्लासेस देखे हैं तुमने, कलर्ड ग्लासेस देखे हैं, ग्लास रेड कलर के, ग्रीन कलर के, ब्यूटीफुल कलर्स वाले ग्लास आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। जेम स्टोन्स देखे हैं तुमने? यस सर। अरे वो एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, वो ज्योतिषी तुम्हारे को बहुत सारे लोगों ने पहने हुए हैं। यस सर देखे। डाला तुमने भी डाला हुआ है क्या? नहीं सर देखा हुआ कुछ। हाँ, वो कई अंगूठियां देखी है ना, बहुत लोगों ने 6-6 डाली हुई है, मैंने देखा एक आदमी ने बहुत डाली हुई है। तो वो कह रहा मेरा मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं ये, मतलब मेरी लक बहुत अच्छी चल रही सर है। वैसे वो जेमस्टोन देखा है ऐसा कुछ। हाँ देखा है, बहुत ही अंगूठी ब्यूटीफुल नहीं होते हैं, देखा। और कलर्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं उसके, मतलब कलर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। ये क्या है, ये किस टाइप के कोलाइड है, ये सॉलिड सॉल्स कहलाते हैं। सॉल, देखो इनका नाम क्या दिया मैंने, SOL, SOL। ये सॉलिड में मतलब सॉलिड डाला गया, सॉलिड के अंदर सॉलिड डाले गए हैं। वो कुछ कलर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो उनमें प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली में केमिस्ट्री के अंदर कुछ एलिमेंट्स है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट हम पढ़ेंगे जब, यू विल सी, वो कलर्ड होते हैं, बहुत सुंदर कलर होते हैं उनके, वो उसी के कारण वो कलर आते हैं जेमस्टोन्स के, ब्लू, रेड, ग्रीन, ऐसे अलग अलग कलर्स के, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और ये बहुत यूज होते हैं, बहुत बिकते हैं वहां पर। वो जो मतलब लोग उसको एस्ट्रोलॉजर से पूछ के डालते हैं, क्यों कह रहे हैं हमारे जो ग्रहण है वो बेटर हो जाते हैं, पता नहीं लक अच्छी हो जाती है। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, वो ये जेमस्टोन्स डालते हैं और काफी कॉस्टली बिकते हैं ये। अब दूसरे टाइप के सॉल पे आ गया, ये एक तो हो गया हमारा सॉलिड, और सॉलिड को क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल। एग्जाम्पल पूछ लेगा, वो कहेगा कलर्ड ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कलर्ड ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जेमस्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आप क्या लिखेंगे, सॉलिड सॉल एग्जाम में। और उसमें क्या है, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड। अब क्या हुआ कि सॉलिड में मैंने लिक्विड डाला था, ठीक है, अब डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड हो गया। भाई ये मीडियम लिक्विड है। सर हाँ सर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम थोड़ा वो इजी तरीके में बता दो कि पता चल जाए यही होता है। जो चीज किसी चीज में जाके डिस्ट्रीब्यूट होती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। अब वाटर के अंदर मैंने स्टार्च डाला, ठीक है, तो स्टार्च क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेज। और मीडियम क्या है, वाटर। समझ में आई? और डिस्पर्शन मीडियम ज्यादा अमाउंट में ही होता है, जैसे सॉल्वेंट था ना, सॉल्वेंट इज इन मोर अमाउंट, सोल्यूट लेस अमाउंट, इसी तरह ही होता है। तो जैसे अब हमने सॉलिड में डाला, लिक्विड में, सॉलिड डाला हमने लिक्विड में,
तो इससे क्या बन गया, देखो तुमने पेंट्स यूज करते हो, तुम पेंट्स जितने भी करते हो, यस सर। डिफरेंट कलर के पेंट्स के डब्बे लाते हो, कभी ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो पेंट्स में कुछ स्मेल आती है ना, किसकी स्मेल आती है? देयर इज सम स्मेल ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एसीटोन होता है क्या, या अल्कोहल, किस चीज की स्मेल आती है? वाटर तो थोड़ी होता पेट्रोल है जैसा होता है कुछ, हैं? पेट्रोल जैसा होता है अब कुछ। पेट्रोल जैसा ही वो, मतलब उसमें अल्कोहल, एसीटोन, इस टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, वाटर नहीं होता। उसके अंदर डाइज डाइज डाली जाती हैं। डाइज क्या होती हैं? येलो कलर की डाई, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, ऐसे डिफरेंट कलर की। वो डाइज जो होती है ना, वो क्या होती हैं? सॉलिड सॉलिड सब्सटेंसेस होती हैं। केमिस्ट्री में तुम्हें पता ही है डाइज क्या होती हैं। यस वो सर। इंक के अंदर भी डाई डालते हैं ना हम, इंक भी तो कोलाइडल है, समझे? तो ये जो पेंट्स होते हैं, और हमारे जो सेल फ्लूइड्स हैं, सेल फ्लूइड्स, तुम्हारे जो बॉडी के अंदर जो सेल है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, उसमें क्या फ्लूइड होता है? क्या होता है? फ्लूइड होता है। तो वो भी यही स्टोरी है कि वो लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। तुम्हें पता ही है कि ऑस्मोसिस होती है बॉडी के अंदर। पानी इतना पी रहे हैं तो कहाँ जा रहा है? अरे वाटर सेल्स में जाता है ना, फ्लूइड होता है सेल में, और उसमें सॉलिड भी होता है, सॉलिड भी होता है। तो ये जो हमारे बॉडी में जो होते हैं सेल, उनमें भी होता है सेल फ्लूइड। इसको क्या बोलते हैं? सॉल। इसका क्या नाम बताया इसने? SOL, सॉल। सॉलिड मतलब लिक्विड में डाला गया है, सॉलिड को लिक्विड में डाला है, इसको क्या बोलेंगे? सॉल। ये नंबर 2 पॉइंट था, ये समझ में आ गया? नंबर 2। यस सर। हमें इनको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में आने वाला है, एक एक क्वेश्चन आता है इसमें हर साल। ये टेबल में से एक क्वेश्चन आएगा, अभी बता रहा हूं। तो इसको दिमाग में रखना, सारा नोट करना है, नोट करना सारा, बना लो, टेबल बना लो पूरा। अब फिर क्या कर सकता हूं मैं? डिस्पर्शन मीडियम गैस है, इसमें सॉलिड डाल दिया, इनको क्या बोलते हैं? एरोसॉल। देखो ये आपने क्या किया, सॉलिड इन गैस डाल दिया, ये क्या बन गया? एरोसॉल। एरोसॉल का मतलब क्या होता है? देखो समझ आएगी। एरो, एयर, एयर है ना, एयर, उसमें सॉलिड चले गया, उसमें सॉलिड चले गया। तो जैसे स्मोक है, स्मोक क्या है? स्मोक क्या है? समझ में आ गया? स्मोक जो है वो एरोसॉल है। मतलब डिफरेंट टाइप्स के कोलाइड्स हैं, इसी को बोला क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। और वो कैसे चेंज हो रहे हैं? जब फिजिकल स्ट्रेंथ चेंज हो रही है, किसकी? या तो डिस्पर्स फेज की और डिस्पर्शन मीडियम की। तो सर एरोसॉल में क्या स्मोक, होगा? ये एरोसॉल है। सर सर हाँ, सर स्मोक में डिस्पर्स फेज किसका होता है, मतलब क्या होता है उसमें? गैस होती है डिस्पर्स्ड फेज, इसमें एयर होती है। एयर क्या होती है? गैस है ना। अरे एयर क्या है, यही तो बता रहे नहीं हैं। सर, एरोसोल तो सॉलिड और गैस के कॉम्बिनेशन से बनता हाँ है तो ना। कोई बात नहीं, डिस्पर्स्ड फेज मैं बता रहा हूँ, डिस्पर्शन मीडियम गैस है ना। अरे डिस्पर्शन मीडियम गैस है ना इसके अंदर। सर मैं पूछ रहा हूँ स्मोक के अंदर सॉलिड होता क्या है, ये पूछ रहा हूँ मैं सॉलिड आपसे। कार्बन के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल्स। ओके सर। जब कोला जलाते हो, कोला जलाते हो, क्या जलाते हो? कार्बन, कार्बन ही तो होता है वो। कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। जब भी कार्बन को जलाते हो, कार्बन के पार्टिकल्स रह जाते हैं ना कुछ उसमें, काला काला जो होता है, ब्लैक कलर के जो पार्टिकल, कार्बन के होते हैं। ऐसे कार्बन और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, कार्बन और डस्ट पार्टिकल, ये सब होते हैं उसके अंदर। तो एरोसोल का पता लग गया हमें। स्मोक एंड डस्ट दिखा नहीं है, स्मोक एंड डस्ट। स्मोक का मतलब इसमें कार्बन तो है ही है, स्मोक में कार्बन को जलाने से ही धुआं निकलता है। अब लिक्विड डिस्पर्स फेज है, सॉलिड मेरा डिस्पर्शन मीडियम है। नेक्स्ट आ गया, देखो लिक्विड को मैंने डाला है, किसमें डाला है? सॉलिड में। लिक्विड को सॉलिड में डाला, इसे बोलते हैं जेल। इंपॉर्टेंट है जेल, मतलब लिक्विड को किसमें डाला है? सॉलिड में। यहां पे देख रहे हैं, मीडियम मेरा सॉलिड और डिस्पर्शन, डिस्पर्स फेज लिक्विड। ये सब जो होते हैं ना, जेली, तुमने जेली खाई है, और चीज और बटर इसके एग्जांपल है। बटर इसके एग्जांपल है, क्वेश्चन पेपर में आया था कि बटर इज व्हाट टाइप ऑफ कोलाइड। बट विल बी अवर आंसर, मैं ये पूछूं बटर इज व्हाट टाइप ऑफ कोलाइड।
तो ये क्या है? जेल है। बटर किस कैटेगरी में आया? जेल है। फिर मुझे बताना पड़ेगा इसका डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। बटर का अंदर डिस्पर्स्ड फेज क्या है? यहां पे लिखा हमने, लिक्विड है, और डिस्पर्शन मीडियम क्या है? सॉलिड। सॉलिड होती है ना फैट, उसके अंदर लिक्विड होता है। किसके अंदर? चीज के अंदर भी और बटर के अंदर भी। लिक्विड की फॉर्म में होता है ना अंदर कुछ चीज, लिक्विड होता है, और लेकिन सॉलिड होता है जो फैट होती है, फैट होती है। चीज के अंदर भी फैट होती है सॉलिड, और उसके अंदर लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, जैसे वाटर होता है, वाटर होता है। तो ये नहीं बोलते हैं जेल। ये वाले थे, ये वाला भी समझ में आया। अब लिक्विड में लिक्विड डाल देते हैं हम। लिक्विड लिक्विड में क्या बनेगा? उसे बोलते हैं एमल्शन। मतलब लिक्विड है डिस्पर्स्ड फेज और लिक्विड है डिस्पर्शन मीडियम। स्टूडेंट्स, दोनों ही चीजें लिक्विड हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। मतलब डिस्पर्स्ड फेज है स्टूडेंट्स, और डिस्पर्शन मीडियम है। दोनों ही चीजें क्या है? लिक्विड है स्टूडेंट्स। अब मिल्क है, मिल्क जो है वो इसका एग्जांपल है। मिल्क के अंदर क्या होता है? जो फैट होती है वो भी लिक्विड होती है, पता तुम्हें? और जो लिक्विड दूसरा है जिसके अंदर फैट डिजोल्व मतलब मिक्स्ड है, वो वाटर है। और एक प्रोटीन होती है जिससे वो दोनों स्टेबल रहते हैं, स्टेबल रहते हैं मिल्क के अंदर। मिल्क के अंदर, मिल्क से क्रीम भी बनती देखी है तुमने कभी? तो वो सर हम मिल्क को ऐसे हम बना सकते हैं खुद ही? मिल्क को खुद थोड़ी बनाएंगे, वो तो मिल्क जो है जो हम मिल्क कहाँ से लेंगे? हम थोड़ी बना सकते हैं इसको। मिल्क तो जो गाय का दूध की बात कर रहा हूँ मैं, वो तो नेचुरल चीज ऐसे है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हो ना पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग। हाँ, वो तो हमने उसको पता किया कि इसके अंदर क्या क्या है। हम वो कह रहे हैं कि मिल्क जो है, मिल्क जो है वो एक एमल्शन है, वो एक तरीके से कोलाइड ओके है, सर। उसका नाम हमने एमल्शन दिया। ये सब कोलाइड्स होते हैं, कोलाइड्स होते हैं। किस टाइप का कोलाइड है? मिल्क एक एमल्शन है। हेयर क्रीम जो तुम लगाते हो वो भी एमल्शन है मिल्क में, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, लिक्विड, डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है। समझ में आई? दोनों चीजें लिक्विड फॉर्म में है। वो फैट वाली जो चीज है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, और जो वाटर है वो भी लिक्विड है, उसके अंदर ये घुला हुआ है। तो लिक्विड एक कोलाइड है। वो हम बाद में बताएंगे कि इनको कोलाइड को कैसे प्रेसिपिटेट करते हैं, इनसे क्रीम कैसे बनेगी, वो बताएंगे तुम्हें बाद में। अब इसके बाद क्या हमने किया? अब लिक्विड को गैस में डाल दिया। तो लिक्विड को गैस में कहां दिखा तुमने? इसे क्या बोलते हैं? एरोसोल। एरोसोल। अरे जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स क्या होते हैं? तुमने कहा ना पानी, रेन कैसे होती है बताओ? जो वाटर के ड्रॉप्स होते हैं वो एयर में है ना, क्लाउड के अंदर यस वाटर है सर। ना। पानी किस में है? एयर के अंदर प्रेजेंट है ना। तो जब वो ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पानी फिर नीचे आ जाता है, बड़े बड़े ड्रॉप्स बन जाते हैं, वो भी कोलाइड है। उनको क्या बोलते हैं? एरोसोल। ये लिक्विड को गैस में जब डाला, फॉग, फॉग मिस्ट, ये सर्दियों में फॉग और मिस्ट आती है जब कारों में दिखता नहीं आपको, बहुत ठंड पड़ती है, क्या होता है? वो दिखते नहीं है, मिस्ट आ गई सुबह सुबह, फॉग आ गई, तो क्या होता है? वाटर के ड्रॉप्स जो होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं किसमें? एयर में। एयर क्या है? गैस है। एयर क्या है? गैस। तो लिक्विड गैस में आ जाती है। और ये स्प्रे जो तुम इंसेक्टिसाइड स्प्रे अपने घरों में करते हो ना, वो भी यही चीज है। वो जो बोतलें लाते हो ना, बटन दबाते हो तो ऐसे स्प्रे सा निकलता है, वो सब एरोसोल है। यस सर। अब ये भी पता लग गया। ये हमें याद करना है, मतलब थोड़ा हमें टाइम लगाना पड़ेगा, इसको याद करने वाली बात है। इसमें एक क्वेश्चन आना है, ये सब याद करने हैं। और गैस अगर सॉलिड में डाल दूं, उसे बोलते हैं सॉलिड सॉल्ट। अब तुम कहोगे गैस सॉलिड में कैसे गई? अरे बहुत सारे सॉलिड्स में गैस होती है। फोम रबड़ देखा है? मतलब गैस जो मेरी है वो डिस्पर्स्ड फेज है, वो कम अमाउंट में है, तो ज्यादा अमाउंट में क्या है? सॉलिड। गैस को सॉलिड में तुमने डाल दिया तो वो क्या बन गया? सॉलिड सॉल्ट। सॉलिड सॉल्ट बन गया। जैसे कि फोम रबड़, रबड़ में तुम्हें दिखता है ना ऐसे कोई चीज अंदर है। फोम रबड़ होते हैं ना, वो यस हाथ से सर। दब जाते हैं, देखा नहीं तुमने? रबड़ से ऐसे होते हैं, दब यस जाते सर। हैं। उसके अंदर गैस होती है, मतलब सॉलिड
जो रबड़ सॉलिड था, रबड़ लेटेक्स होता है, जो रबड़ तो लेटेक्स है तुम्हें पता है नेचुरल, उसके अंदर गैस भरी हुई है, गैस चले जाती है, एयर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो वो फोम रबड़ हो जाता है, फोम वाला। वो फोम वाला बड़ा अच्छा लगता है ना, दब जाता है हाथ से, ऐसे ऐसे लगता है, बड़ा मजा आता है उसको बैठने पे, फोम रबड़। तो ये फोम रबड़ जो है ये एक सॉलिड सॉल है। और गैस जब लिक्विड में चले जाती है फोम होती है। फोम फोम तुम्हें पता है फोम क्या होती है? अरे ये तुमने सोप के बबल्स बनाए हैं? बोलो। यस सर। सोप सॉल्यूशन में स्ट्रा से जब तुम बहुत तेज फूंक मारते हो तो क्या निकलते हैं? तरह से बबल से निकलते हैं ना, बबल, सोप लेदर। उसके अंदर क्या होता है? ये फोम होती है, हवा होती है फोम सर। होती है ना, ये फोम होती है। तो इसके अंदर तुमने क्या किया है, ऊपर तो लिक्विड है सोप का, सोप सॉल्यूशन, और उसके अंदर क्या चले गई, एयर। एयर कौन सी? गैस, जो तुमने हवा अपने मुंह से डाली ना उसके अंदर, तो वो बबल्स बन के उड़ते गए। तो ये फॉर्म है जो, ये क्या है, इसको हम, ये भी कोलाइडल है, ये भी एक कोलाइड है। किस टाइप का कोलाइड है? इसे फॉर्म कहते हैं, इसे फॉर्म कहते हैं। इसे फ्रॉथ भी जो होती है, देखो फ्रॉथ होती है, बाद में बताएंगे। फ्रॉथ फ्लोटेशन एक प्रोसेस है मेटलर्जी में, जिससे हम मेटल्स को रिकवर करते हैं। जैसे जिंक को सल्फाइड, और उसके लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन होती है, वो ऊपर फ्रॉथ सी बन जाती है। और व्हिप्ड क्रीम भी जो तुम यूज करते हो, ये शेविंग वगैरह के लिए तुम करते हो क्रीम, उसमें भी बड़ी झाग निकलती है ना, बहुत झाग निकलती है। यस सर। तो झाग क्या होती है भैया? वो मतलब गैस लिक्विड में होती है ना, फूल जाती है, वो लिक्विड फूल जाता है, लिक्विड फूल जाता है। तो ये सब एग्जांपल्स थे कोलाइड्स सर के। गैस गैस में नहीं हो सकता कुछ? अरे वो एयर होती है, और क्या होगा उसमें, हवा होती है। तो ये सब फॉर्म जो फ्रोथ मैंने बताई है, ये सारे दे आर ऑल एग्जांपल्स। तो हमने कितने टाइप के कोलाइड्स बताए तुम्हें यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने टाइप के बताए? 8 टाइप ऑफ कोलाइड्स। गैस में गैस डालूंगा तो मिक्स हो जाती है, वो कोलाइड नहीं बन सकता। बात समझ में आई? गैस गैस का नहीं बन सकता। नहीं सर, सॉलिड में जैसे सॉलिड ऊपर डाला तो वो मिक्स नहीं हो हाँ जाएंगे तो वैसे? अलग टाइप के मिक्स होता है ना, ये बना तो दिए कितने टाइप के कोलाइड्स, बहुत सारे, कितने 8 टाइप के तो बता दिए नहीं तुम। सर, अगर डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्स मीडियम सेम हो दोनों चीजें। तो है यहाँ पर सॉलिड, सॉलिड है नहीं, नहीं तब सर, तो कलर्ड उसको ग्लासेस कोलाइड बनाए के मैंने। अंदर क्यों डाल रखा है उन्होंने? जैसे हाँ गैस गैस का नहीं डाल रखा हाँ, तो तो? लिक्विड लिक्विड का भी तो बनाया मैंने, इमल्शन मिल्क। गैस गैस का नहीं बन सकता, क्योंकि गैस और गैस मिक्स हो जाती है, इंटरमिक्स हो जाती है। अरे गैस इंटरमिक्स हो जाती है एक दूसरे से बिल्कुल ही। गैस का कोई डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम कैसे बनाऊंगा? दो गैस डाल दी मैंने, दो गैस मिक्स हो गई, वो तो कंप्लीटली मिक्स हो जाती है, कंप्लीटली मिक्स हो गई गैसेज। वो डिस्ट्रीब्यूशन कोई उसका वो नहीं है कि एक फेज है दूसरा फेज है, दोनों, दो गैस लेके मैं मिला दूंगा तो दे विल बी कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर, तो उनका कुछ नहीं बनने वाला। गैस गैस तो कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाती है, उसे ये फर्क नहीं पड़ा हाइड्रोजन नाइट्रोजन में मिलाओ या नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस में मिला दो, तो उनके पार्टिकल्स जो होते हैं तुम्हें पता ही है कि किस टाइप से होते हैं, उनके अंदर एकदम इंटरमिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं बहुत फास्ट। तो ये सिर्फ 8 टाइप के बने, 8 टाइप के बने, और इन्हीं का नाम हमने यहां पर फिर दोबारा दिया। अब उसने क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज एन एरोसोल। क्वेश्चन जैसे आ गया, यह क्वेश्चन आ चुका है, बट मैं उसी को बता रहा हूं, व्हाट इज एन एरोसोल। तो एरोसोल का मतलब क्या है? लिक्विड इन गैस, मतलब गैस मेरी डिस्पर्स्ड फेज मीडियम, इसमें गैस डिस्पर्शन मीडियम है और लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज है, समझ गए? एरोसोल, एरोसोल का एग्जांपल पूछ लिया उसने पेपर में, तो एरोसोल का एग्जांपल क्या है? लिक्विड इन गैस, अभी तो तुम्हें बताया कि लिक्विड गैस कौन सा है, जैसे ये फॉग बनी, मिस्ट बनी, क्लाउड बने, ये सब एरोसोल्स हैं। ये देखे ना, एरोसोल, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, ये सब। तो यहां पर हमने आंसर किया इस क्वेश्चन का, व्हाट इज एन एरोसोल। एरोसोल इज ए लिक्विड इन गैस, gas is the dispersion medium, liquid is the dispersed phase, everything we have to write dispersion medium, दो ही चीजें होती हैं सिर्फ, and dispersed phase, बस दो चीजों का आंसर हमारा बनना है, कोई भी चीज ले लो। यहां ही हमने दोनों चीजें बताई हैं आपको टेबल में, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, देख रहे हो, एक फेज होता है और एक मीडियम होता है, बस फिर इससे कोलाइड बन जाता है।
and the name of the colloid is according to this two things only. अब सॉलिड एरोसॉल में क्या होगा, सॉलिड इन गैस, तो स्मोक अभी हमने बताया, स्मोक में क्या हुआ, फोम हमने अभी बताई है, फोम क्या होती है कि गैस इन लिक्विड है, ये जो बनी आपकी सोप लेदर विप्ड क्रीम। एमल्शन हमने बता दिया, मिल्क एक एमल्शन है, मिल्क में क्या है, फैट भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड भी है, सॉलिड इन लिक्विड है, तो सॉलिड इन लिक्विड के भी हमने एग्जांपल दिए, ये जितने भी पेंट्स हैं तुम्हारे वो क्या है, सॉलिड इन लिक्विड, इन्हें सॉल बोलते हैं, इन्हें सॉल बोलते हैं। ये जो पेंट्स होते हैं ये सब पेंट्स किस कैटेगरी में आए, सॉलिड फॉर्म बता दी, गैस इन सॉलिड। ये जो आपने फोम रबड़ का मैंने बात की, फोम रबड़ वाला वो सरपंच सा होता है जो बहुत दबता। तो जेल क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड। जेल तो तुम्हें पता ही है सारे क्या है, बटर तुम्हारा क्या है, बटर जेल ही तो है, बटर जेल ही है। और सॉलिड इन सॉलिड के तो हमने दिखा दिए तुम्हें, ये जेमस्टोन, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। तो यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ इसका कोलाइड से। एनी डाउट हियर, तुम्हें कोई डाउट लग रहा है इसमें फर्स्ट पार्ट में? नो सर। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन हमने करा दिया, ये एक क्वेश्चन इसमें पेपर में आना है, वो तुम्हारे और कोई प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पे तुम मुझे लिखना, मैं व्हाट्सएप पे उसका बताता हूँ तुम्हें। सर नहीं, मैं कह रहा था कि जैसे वो है ना कि एंजाइम्स और इमल्शन कटी हुई हैं सीबीएसई के सिलेबस से। नहीं, ये सारी चीजें तो आनी है, कोलाइड्स हमारे कोर्स में है। नहीं सर, कोलॉइड्स है ना सर, एंजाइम और इमल्शन आगे है ना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अभी आप वो मत कराओ, वो आप बाद में करा देना। वो मैं फिर देखूंगा, पहले जो कोर्स में होगा वो करवाऊंगा। अभी इसका प्रेपरेशन प्रॉपर्टी सब है वो हमारे कोर्स में, वो देखना। ठीक है, वो जो कोर्स है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। ठीक है, ओके। सर आप मुझे प्रोजेक्ट की वो भेज देना, हाँ, मैं रिकमेंडेशन। वो व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, आपको सारा बताता हूँ। सर इसकी सर पीडीएफ भेज देना प्लीज। वो एक बार लेट द चैप्टर फिनिश, उसकी पूरी भेज दूंगा एक ही बार इकट्ठी करके सारी। सर ये वाला टेबल है क्या एनसीईआरटी में? हाँ, मैं भी तुम्हें भेज दूंगा, एनसीईआरटी में है यहाँ पर। वो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई भी तुम्हें लगता है स्क्रीनशॉट ले लो।